Time to move towards the segments. First of all, I would like to invite Mohammed Samad on stage to recite a few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. I'd like to invite Hafiza Tuba on stage to recite Hum of the kindest and the most merciful Allah Almighty. कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हम फखरुद्दीन को इनवाइट करेंगे स्टेज पे कि वो आकर हमें अपनी खूबसूरत आवाज में नाच सुनाएंगे। प्लीज कम ऑन स्टेज। सेगमेंट पे चलते हैं। उसके लिए हम स्पेशली जो कि बच्चों ने स्पीचेस तैयार किए हैं टीचर्स के लिए, अपनी अफेक्शन शो की है टीचर्स को, उसके लिए हम बुलाएंगे अरीशा फातिमा फ्रॉम फिशरीज ऑन स्टेज। Name of Allah, whose boons and benedictions are countless. Honorable teachers and respected fellows, Assalamu alaikum. It is a blessing to be here on this special day to pay tribute and gratitude to our nation leaders for their matchless and unique services. The light of the world, the beacon of the
A teacher is a person in whose hands lies the fate of any nation. The present world of development and cooperation, science and technology owes all of its progress to its teachers. It was a teacher who prepared a philosopher like Aristotle, an administrator like Umar bin Khattab Radhiyallahu ta'ala anhu, and a scientist like Thomas Edison. Worthy audience and especially my dear fellows, no nation in the world has ever progressed without respecting their teachers. If we cast a cursory look, we see that all developed countries in the world hold their teachers at high esteem. They provide their teachers all kinds of facilities and incentives. History reveals that they are proud in touching the feet of their teachers. Hazrat Ali Radhiyallahu ta'ala anhu said, if a person teaches me one single word, he has made me his servant for a lifetime. These words comprehensively describe the status of teachers in a civilized society. Islam teaches us to respect our teachers, listen to them, and be dutiful because they are such a noble personality that they help us learn, they care and love us like parents, treat us like their own, sometimes little harsh, so that we can stay away from wrongdoings. And what does it हो चुके हैं, बोर भी हो रहे हैं, तो अगर तो आप अदब में आप लोगों को दिलचस्पी है तो अगला इवेंट आपके लिए होगा, अगला सेगमेंट। उससे पहले एक शेर हो जाए। उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तलबा को जरूर बादशाह बना देता। अब हम मोहम्मद मजर फ्रॉम एनिमल साइंस इनवाइट करेंगे स्टेज पे कि वो आकर हमें कुछ शायरी दें। कुछ अशार जो जहल का सर काटे वो तलवार है उस्ताद, जो जहल का सर काटे वो तलवार है उस्ताद, जिससे मिले फूल वो गुलजार है उस्ताद, बच्चों को अता करते हैं सच्चाई की ताकत, हक और सदाकत के पुरस्कार है उस्ताद। मेयार बुलंद कैसे हो बच्चों का है यही फिक्र, मेयार बुलंद कैसे हो बच्चों का है यही फिक्र, शोहरत के न इज्जत के तलबगार हैं उस्ताद। तो ज़्यादातर ऐसे ही आपको स्पीचेस और शायरी मिलेगी, तो हम अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक और शेर। ना कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। अब हम सानिया को इनवाइट करेंगे स्टेज पे कि वो आकर हमें टीचर्स के एक स्पीच सुनाएं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सदर आली वकार, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो मौजू है उस्ताद की अज़मत। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी। इल्म और हुनर के गोहरे नायाब असातिज़ा हैं, इल्म और हुनर के गोहरे नायाब असातिज़ा हैं, कौम के मोहसिन इसके मेमार असातिज़ा हैं। मैं क्या खिराजे तहसीन पेश
माहौल को अब थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। असातिज़ा के थीम पे एक ड्रामा पेश करेंगे ताहिर एंड ब्रो, प्लीज कम ऑन स्टेज। अम्मा, मैं सोच रही हूँ पढ़ाना शुरू कर दूँ करीबी कॉलेज में। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम बड़ी हो चुकी हो, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हो, मगर बेटा तकलीफ का स्वभाव है बड़ा कठिन। अम्मा, मैं शम्मा हूँ, ना जलूं तो अंधेरा हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे इल्म से आने वाली नस्लें इस्तेफादा हासिल करें। बेटा, ये अंबिया की मेराज है, क्या तुम इसे संभाल पाओगी? अम्मा, बस आप दुआ दे, मैं कल से जा रही हूँ करीबी कॉलेज। देखते हैं क्या करती है। मैं कहता हूँ उसको इतना तंग करेंगे, पढ़ाने का सोचा ही ना आपके पास। ख्याल करो लेक्चरार, फीमेल है। हम जेंडर इक्विटी पे यकीन रखते हैं, मात्र औरत में कोई तब्दीली नहीं करते। मैं कहता हूँ कल आने को सोचेगी नहीं क्लास में। उससे उम्मीद तो प्रैक्टिकल है, कुछ सवाल तो इसमें छोड़ो, आज तो मैम को बुला के भेजेंगे। Assalamualaikum class. I am your teacher, Ma'am, and I will teach you history. मैं आप सबको कोर्स करवाने से पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, आप बताएं। को बाहर कहते हैं, छोटा गाँव। Sit down. सारा कॉलेज जानता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, कोई ना जाने कॉलेज तो जाने है। जी, आप बताएं। तो मैं क्या करूं? बैठ जाएं। जी, आप बेटा। गुड, सिट डाउन। आप कुछ करवाना चाहेंगे? और कुछ भी करते हैं, सिर्फ हम ही पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ लिया करें। कोर्स शुरू करने से पहले क्यों ना मैं आप लोगों का जनरल नॉलेज टेस्ट कर लूं। आप लोग उस्ताद के बारे में क्या जानते हैं? जी ताहिर। बाद एक टीचर होता है, क्लास में आके पढ़ा देता है। बैठ जाएं। जी, आप टोटल हैं, लेकिन आपके अल्फाज में कोई दम तो नहीं है। खैर, जी यकीन। मैम, टीचर को हमारे एम की केयर करें। बैठ जाएं। गुड। जी, आप सबकी बातें एक जैसी लग रही है मुझे। खैर, आप सब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रहबर राह की रूह है, तो क्या इसमें कुछ गलत है? रहबर हर राह की रूह है, मगर इसमें एक मसला है, अदद इसके दरमियान हाइल हो जाता है। ये राह की रम्स सिर्फ अदद करने वालों के लिए ही खुलती है। बेटा, मैं जनरल बात कर रही हूँ, अभी आप जरा सब्र करें। आप में से कोई मौलाना रूमी के बारे में जानता है?
बिल्कुल ज़रूर। मौलाना रूमी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उन्होंने खुद फरमाया कि मैं कुछ ना होता अगर मेरे उस्ताद शाह शम्स तबरेज़ ना होते। आप सबने ये शेर सुना ही होगा, अतः पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और उस्ताद जो है वो मकाम तो नहीं दे सकता, मगर मकाम जरूर दे सकता है। अपनी तलब मकाम से मकाम कर लो। उस्ताद के पास तलवार तो नहीं, मगर कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है, जो तमाम बुर्जों को ढेर कर सकती है। अब आपकी सवारी का क्या फायदा, निकल रहे सारे। अच्छा पढ़ाएं कुछ जाए। एक नज़म है। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर का महसूल करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सुपसर का जो वासिफों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं तस्वीर उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मेज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा की जान से लिखा, जभी तो रोज कमा का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। चलेंगे जिसके अंदर सिस्टर तैमूर लाचारी हमें गाना सुनाएंगे टीचर से मिलकर। आप लोगों को मुझे एक्साइटमेंट मैं तैमूर लाचारी आज मैं अपने तमाम दोस्तों, अपने टीचर्स और जितने भी यानी कि मेरी फैकल्टी हैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपने उस्ताद के लिए कुछ पढ़ने का मौका दिया है। उस्ताद के लिए क्योंकि वो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी सर्व कर देता है, हमें हमारी तरबियत करता है, हमारे लिए मेहनत करता है। ये मेरे चंद अशार, मेरी चंद लाइनें उनकी उस मेहनत का अदर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारी तरफ से, हमारे जो दोस्त हैं उनकी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा एक यानी कि हमारी मोहब्बत है, हमारा तोहफा है। लेकर आते हैं हम, थाम लेते हैं आके वो, खो जाए राह तो राह रोशन करते हो। कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा करते हैं वो। हमें है यकीन हमसे प्यार करते हैं वो। दिए की ज्योति सी तुम्हें मोती, ये दुनिया इतनी हसीना होती। हमें भी ये तरीका न होता, हमें पाए तरीका न होता। ओ टीचर तुमसे पाया ये सभी कि मिलके हम तो रहोगे फिर कभी। लेकर आते हैं हम, थाम लेते हैं वो, खो जाए राह जो राह रोशन करते वो। कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा करते हैं वो। हमें है यकीन हमसे प्यार करते हैं वो। हमें है यकीन हमसे प्यार करते हैं वो। थैंक यू। इवेंट को रैप अप करें। अब मैं डॉक्टर उमैर वकास साहब को स्टेज पे बुलाता हूँ कि वो आकर हमारे रिस्पेक्टेड एक्टिविटी साहब को इनवाइट करेंगे। Thank you, Ali.
और इससे पहले कि मैं सर को इनवाइट करूँ, आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरीवन जिसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आप सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और मैं इस बात पे बड़ा बिलीव रखता हूँ कि जब तक आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं करते, एजुकेशन के साथ आपकी आर्ट या आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो जब तक इसके साथ ज्वाइन नहीं होती, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या एक्सेस नहीं कर पाते। ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सर को दावत दूँ, अभी ड्रामे में वो जो अलीशा ने लास्ट में एक नज़म पढ़ी थी अहमद फराज की, मैं वो एक दफ़ा पूरी पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो कलम की ताकत और इंसान की ताकत है कि मेरे ज़मीन ने मुझको प्याम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, और फसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर कमा बदस सतादा है अस्करी उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूदे खाक में आतिश फिशा जलाती थी, और बिछा दिया गया है बारूद उसके पानी में, वो जोए आग जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए कि सुपुर्दार रसन सारे सर कशीदा हुए। तमाम सूफी और सालिक सभी शयूख और इमाम उम्मीदें लुत्फ पे ईवान कुछ कलम में है कि मुअज़्ज़िज़ीने अदालत बिहर उठाने को मिसाले साइले मगरम नशिस्ता राह में है। तुम अहले हर्फ के पिंडार के सनागढ़ थे, वो आसमाने हुनर के नजूम सामने हैं। बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदागराने सुखन के हुजूम सामने हैं, और कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो। सो शर्त ये है जो जां की अमान चाहते हो, तो अपने लोहो कलम कत्लगाह में रख दो, वरना आपके निशाना कमादारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो इल्ची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो जवाब है मेरा मेरे उलू के लिए, मुझे है हिर्से करम न खौफ खमियाजा, उसे है सदवते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सर का जो गाज़ियों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं उस नकबजन का दस्ते हवस जो अपने ही घर की छत में शराब डालता है। मेरा कलम नहीं उस दुज़्वे नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं मीज़ा ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हर दम हिसाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो भी लिखा तपा के जान से लिखा, तभी तो लोच कमा की और ज़बां तीर की है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं यकीन है मुझे, ये सारे सितम कोई तो गिराएगा, और तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। अब मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर आसिफ साहब को, चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी एंड साइंसेज। सबसे पहले तो मैं अपनी वेटरनरी फैकल्टी का बहुत मशहूर हूँ, मेरे टीचर और मेरे जो वेटरनरी स्टूडेंट सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हम ये जो अपना इवेंट है टीचर्स डे का, उसको फैकल्टी लेवल पर सेलिब्रेट करें। तो आप सब लोग बहुत ही तारीफ के और बहुत ही आप कह रहे हैं थैंक्स के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने एटलीस्ट ये छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा है। उस्ताद की बात
आप ये देखें, एक फिक्र हम बचपन में सुनते थे, बादब बानसी बेअदब बेनसीब। इसका मतलब समझ नहीं आता, टाइम गुजरते जाते आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें समझ आई हैं कि वो किस लिए कहा जाता था कि बादब बानसी बेअदब बेनसीब। आप किसी भी ओहदे पे चले जाएं, किसी भी, जितना दरख्त ज़्यादा फलदार होता है ना, वो उतना ही झुकता जाता है। हमारी कोशिश यही है इस फैकल्टी के अंदर हम आप लोगों को इंशाल्लाह बानसीब बना के भेजें, और हम आप लोगों को बानसीब किस तरह बनाएंगे कि जब आप बादब बनेंगे, ठीक है ना। हमारी कोशिश यही है कि हमने अपनी फैकल्टी के अंदर, अभी हमारा स्टार्ट है, हम ऐसी चीज़ें, ऐसे आप कह लें कि टूल्स एट पार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है, आप अब देखें हम मेन स्ट्रीम आहिस्ता आहिस्ता हमारे टीचर्स भी आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो अगर हमें फील हो रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी बेहतर इंप्रूव करते जा रहे हैं। आज से 2 साल पहले या 3 साल अगर हम देते हैं, हम अपने जो एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ा धीमे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ ना कुछ, ये भी आप ये देखिएगा टीचर्स डे का जो फंक्शन है किसी और फैकल्टी लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, सिर्फ हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स और हमारे जो ये हमका एंड वेटरनरी स्टूडेंट सोसाइटी ने सोचा कि इसको हम एटलीस्ट फैकल्टी लेवल पर ऑर्गेनाइज करें। तो ये पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव थिंकिंग है। हम ये नहीं चाहते कि हम सब लोगों के अंदर, बाशमूल मेरे, हम इस पॉजिटिव थिंकिंग को हम इम्प्रूव करें, इस पॉजिटिव थिंकिंग को जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम करें। इसमें से मेरे ऑफिस के दरवाजे पहले भी आप सब लोगों के लिए ओपन है कि किसी को अगर किसी किस्म का कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कंप्लेन हमारे टीचर्स की तरफ है ही नहीं, हमारे टीचर्स अपने लेवल पे उसको हैंडल करते, खुदा ना खासा इंप्रूवमेंट, मैंने पहले भी कहा कि इंप्रूवमेंट की मुझे आइश होती है, खुदा ना खासा कोई चीज़ कहीं से राइट लेफ्ट डिसटेंडर हो भी जाती है, तो आप आगे हमारे जो मुझसे आके रब्ता करें, हम बैठ के उसको किसी किस्म का इसमें अगर कोई आर नहीं है कि खुदा न खास्ता कि अगर किसी भी तरफ से कोई गलती या कोताही या आप कह लेंगे लाशोरी तौर पे कुछ ऐसा कोई टीचर या स्टूडेंट कर बैठे कि हम उसको रिजॉल्व ना करें, टीचर को पसंद ना हो या आपस में कुलीग को पसंद ना हो, उसका तरीका क्या है, आप उस स्टूडेंट को बुलाएं या वो आपस में रहते होकर कहें कि यार ये बात आज हुई है, इस बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसको हम इस तरह करके ठीक कर सकते हैं। ये है उसकी इस्लाह करने का। खराब करने का तरीका क्या है, एक स्टूडेंट है 10 बंदों में फिरा के उसकी अब वही चीज, यार आपने गलत कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, ही फील अशेम्ड, उसको बुरा लगेगा, और उससे होगा क्या कि उसके अंदर आप कह लें कि जिद्दीपन, ये चीजें डेवलप होंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बिल्कुल 100% उसमें किसी किस्म की आप कह लें कि गलत नहीं हो सकता, कुछ वो नहीं हो सकता। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने तरक्की की है, अब काफ़ी सारे लोग हमारे दोस्तों का बाहर का भी एक्सपीरियंस है, गोला क्या करता है, उसने अगर आपसे कोई मिसबिहेव की बात हुई है, वो आपको तन्हाई के अंदर उसके साथ, उनको इस कॉल का नहीं पता, लेकिन एथिक्स, ये बेसिकली एथिक्स है, वो बात करेगा, ठीक है ना। तो क्रिटिसाइज से या उससे अमूमी फिजा खराब होगी, बात से बात निकलेगी, किसी स्टूडेंट ने कुछ कह दिया, किसी टीचर ने कुछ कह दिया, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम सब लोग इंशाल्लाह बानसीब बने, इंक्लूडिंग मी। तो वो होगा कैसे कि हमें बादल बनना पड़ेगा, और बादल बनने के लिए क्या, हम सबको झुकना पड़ेगा। वो झुकना अब ये नहीं हो सकता कि मेरे झुकने से या मेरे एक्सक्यूज करने से या कहने से कि मेरी किसी शान में कमी आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा मसला है, हम उसको बैठ के डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, और मैं मेरी फैकल्टी में अल्हम्दुलिल्लाह सारे इसके ऊपर, मेरे स्टूडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर हैं। हर जगह कोई 19-20 तो होता ही है, जिसको हमने इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम उन चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। तो वंस अगेन आप सब स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे। अब इंशाल्लाह हमारा 8 तारीख को वर्ल्ड एग डे आ रहा है, उसकी भी हम सब लोग भरपूर कोशिश करें। आज वीसी साहब नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, वरना वीसी साहब को भी यहाँ इन्वाइट करते। तो वर्ल्ड एग डे हमारा 8 तारीख को है, वो इसी लेक्चर थिएटर में होगा, साथ में हमारा एरिया है, उसमें अपने स्टॉल वगैरह लगाएंगे। तो हम डीसी साहब का चीफ गेस्ट उसमें इनवाइट करेंगे, तो आप उसको बेहतर अच्छे तरीके से उसको तैयार करें। हमारे सारे जितने टीचर्स हैं वहाँ जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं,
तो वो आप अपने स्किट जो तैयार कर रहे हैं, जो आपने वो रेस तैयार करनी चाहिए, उसको बेहतर तरीके से तैयार कर ताकि हम एक और डिसिप्लिन वही वो चीज़ें सबने आपने वो रखना है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सब स्टूडेंट्स का, वेटनरी स्टूडेंट सोसाइटी का, मेरे टीचर साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसके बारे में सोचा, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you.